Good evening, everyone. On behalf of Shastinagar CP Study Circle, I welcome all the members. I also welcome CA Advocate Rano Jainji, who is an ex-ITT member. CA Rano Jain is a merit holder in the Chartered Accountancy examination and an alumnus of Shriram College of Commerce. She holds vast experience in the field of corporate taxation. Her areas of specialization include income tax appellate matters. She has represented clients before different tax authorities, including Income Tax Appellate Tribunal. As an ex-member ITAT, mostly in Chandigarh, during her tenure, she authored numerous landmark judgments on various issues on income tax. She is an excellent orator and regularly gives talks on issues on various platforms of our institute. Recently, she was selected as a member of NCLT, though she opted not to join and remain in practice. She is practicing as an advocate as of today, and today she'll be taking us to presumptive taxation for business, critical analysis of opting out, maintenance and audit of books of account. और रानो जी इतनी खूबसूरती से और इतने सहज तरीके से जब अपना डेलिब्रेशन देती हैं तो ऐसा लगता है, मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी मेंबर्स इस समय प्रेजेंट हैं और सुनेंगे वो भाव विभोर हो जाएंगे और कुछ ऐसा पॉसिबल नहीं है कि समझ ना आए। ये मेरी अपनी असेसमेंट है जो मतलब मेरे को बहुत अच्छे से समझ आता है रानो जी का और सब लोग वाउच करेंगे। सो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन एंड जगजीत को मैं चाहूंगा अगर एक दो सेंटेंस कुछ कहें एंड देन विल हैंड ओवर टू रानो जी फॉर टुडेज डेलिब्रेशन। मैं रानो जी आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फॉर मतलब अलाउ कर रहा हूँ, आपने अगर स्क्रीन शेयर करनी होगी प्रेजेंटेशन के लिए। और एक रिक्वेस्ट सभी मेंबर से, जितने भी वो क्वेश्चंस डालें वो Q&A सेक्शन में डालें, चैट में क्वेश्चंस ना रेज करें। दूसरा, किसी भी मेंबर को चैट में मेंबरशिप नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। ये इसकी जो रिपोर्ट आएगी जूम की रिपोर्ट से, उसमें हमें पता चलेगा किस किसने अटेंड किया, कितने बजे किसने ज्वाइन किया। सो थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू जगजीत। Thank you, Sadiq sir. Welcome, ma'am, again in this, the webinar, the Shastinagar on behalf of Shastinagar Study Circle. Welcome again and welcome all the participants. So today topic is very interesting. The presumptive income है 44 AD and 44 ADA. That is very important and the critical issue definitely Rano ma'am जी उसके ऊपर enlighten करेंगे हमें. So over to Rano ma'am, please ma'am, it's over to you. Welcome again. Thank you, Jagjeet. Good evening, everyone, and Good evening. Thank you to Shastri Nagar CP Study Circle. तो ये मेरा बड़ा अपना सा स्टडी सर्कल हो गया है, मेरा जैसे मैं इन हाउस स्पीकर हो गई हूँ इनकी। Thank you, Satish ji, and so I'm taking it as a compliment, ma'am. Yes, it is a compliment. Definitely, it is a. Thank you, ma'am. And thank you, Jagjeet ji. And the topic given to me is presumptive taxation. And if Satish ji remember, it all started with a question posed to me during another webinar on some other topic. Yeah. I was speaking and someone out of the blue asked me some question on presumptive taxation. I replied to him, मैंने reply कर दिया था, but I told एक मेरा अपना लिखा हुआ एक डिसीजन है चंडीगढ़ बेंच का, नंदलाल पोपली. I referred to him कि आप जाकर नंदलाल पोपली पढ़ लीजिए. And I remember कि उस वेबिनार के एकदम बाद सतीश जी का मैसेज आया कि मैडम नंदलाल पोपली पर एक वेबिनार. मैडम, आई वाज पार्ट ऑफ दैट सेमिनार. मैं अटेंड कर रहा था एज ए अटेंडी और उसी समय जैसे ही आपने नंदलाल पोपली बोला था, उस समय का वो जो आपने आंसर दे रहे थे डेलिब्रेशन में इतना अच्छा था और मुझे उसी समय लगा कि ये टॉपिक बहुत अच्छा जाएगा और मैंने ड्यूरिंग द वेबिनार इटसेल्फ मैंने हाथ किया था, आपको मैसेज किया था कि हम ये नंदलाल पोपली पे I remember that. जैसे वेबिनार खत्म हुआ मैंने फोन खोल के देखा तो उसमें सतीश जी का मैसेज था कि मैडम नंदलाल पोपली पर एक वेबिनार करते हैं. तो मेरा बड़ा मन था मैं सतीश जी से बोलूं कि इसका टॉपिक रख दो नंदलाल पोपली. nobody will understand कि ये क्या बोलने वाले हैं. So that is my pleasure. आज की thank you for accepting our request, ma'am. Thanks a lot. ये डेलिब्रेशन शुरू करने से पहले
आज पहली बार शायद आई हैव टू कॉम्प्लीमेंट माय टीम, रानू जैन लीगल्स टीम ऑफ 3 यंग एंड वेरी एंथुसियास्टिक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो मेरे साथ ये सारी मेहनत करते हैं और सब कुछ बना बना के लाते हैं। सीए प्रांशु सिंगल, सीए मानसी जैन एंड सीए प्रभात जैन। तो आई हैव टू कॉम्प्लीमेंट देम क्योंकि वो मेरे से ज्यादा मेहनत करते हैं, बस मुझे बनाकर पकड़ा देते हैं कि मैडम आप बोल दो। इट इज लाइक दिस। सतीश जी मैं कुछ स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। हाँ जी कर लीजिए मैम। एंड 200 का क्रॉस हो गया था एक बार पार्टिसिपेंट्स का लेवल। गुड। कैन यू सी माय यस मैम स्क्रीन? सो दैट इसको मैं वो कर देती हूँ। दिस इज फुल स्क्रीन ना? यस मैम यस मैम। इसमें पूरा हमने सब्जेक्ट लिखा नहीं है बिकॉज दैट इज ह्यूज लॉन्ग सब्जेक्ट, दो we will confine ourselves to presumptive taxation only. What is presumptive? देखो मैं आज जो बोलने वाली हूँ, जो मेरा मन है बहुत बोलने का, क्योंकि पिछले 2-3 हफ्ते में मेरे पास बहुत सारे सवाल आए हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को लेकर। मैडम 44A में चले गए हैं तो ऑडिट करना है नहीं करना है, इतना टर्नओवर है, इतना प्रॉफिट है, ऑडिट करना है नहीं करना है, कौन सा ITR भरना है, उसमें जा रहे हैं तो गड़बड़ हो रही है, उसमें जा रहे हैं तो कुछ और हो रहा है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। जबकि मेरा बहुत पर्सनली ये मानना है, मैं अपने ऑफिस में भी यही बात करती हूँ, अगर प्रिजम्पटिव का मीनिंग समझ आ जाता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। प्रिजम्पटिव वर्ड का मीनिंग समझ लो, उसके बाद कुछ है ही नहीं। यू नो व्हाट इज प्रिजम्पशन? प्रिजम्पटिव, इसमें हमने एक डिक्शनरी मीनिंग लिखा है, ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी का मीनिंग है, द एक्ट ऑफ बिलीविंग दैट समथिंग इज ट्रू विदाउट हैविंग एनी प्रूफ। मैं थोड़ा सा इसको डेलिब्रेट करना चाहूंगी। एक होती है एजम्पशन। इफ यू रिमेम्बर जब हम मैथमेटिक्स के स्पेशली अलजेब्रा के सम सॉल्व करते थे ना, वी यूज्ड टू एज्यूम सम फैक्ट्स टू अराइव एट सम कंक्लूजन, like let the age of the father be X and let the age of the son be Y and something of that sort. That was assumption of facts to arrive at some conclusion. But presumption is a little forward to assumption. Presumption में क्या होता है कि you kind of assume something without the facts or without the proof of that. And I think ये जो हमने इसमें definition यहाँ लिखी है, the act of believing that something is true without having any proof, अगर ये बात समझ में आ जाती है तो presumptive taxation is one of the most one of the easiest topic in income tax act. दो आज की डेट में मुझे ये फील आ रही है, जो मेरा कम्युनिकेशन सब लोगों से, सारे काउंसिल्स वगैरह से हो रहा है, कि it is becoming a little more complicated than what it has to be. इसकी क्योंकि इसकी जो रीजनिंग है, लॉजिक है इसका एक्ट में होने का, that is to make things easier, not complex. दो पता नहीं शायद हम ओवर स्टडी कर लेते हैं, ओवर रीड कर लेते हैं चीजों को, तो वहाँ कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। तो आज की डेट में ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो इट इज द इजिएस्ट। द थिंग इज कि जब कोई चीज नहीं है लेकिन उसको मान लिया जाता है, सोच लिया जाता है ऐसा, दैट इज प्रिजम्पशन। और हमारे इनकम टैक्स एक्ट में एक बड़ा सिंपल सा रूल है, यू नो, सरकार का हमेशा से ही मन रहा है कि बहुत सारे लोग टैक्स नेट में आए, लेकिन टैक्स के जितने भी प्रोविजंस हैं उनको कंप्लाई करना इज नॉट एन इजी थिंग। आपको बुक्स बनानी, आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो, स्पेशली अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको बुक्स बनानी पड़ेंगी, ऑडिट कराना पड़ेगा, फिर वो किताबें एओ को दिखानी पड़ेंगी, फिर वो कुछ कुछ बोलेगा कि ये क्यों है, ये क्या है, उसका एविडेंस दो, ये दो। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस, हम सब मानेंगे क्योंकि हम सारे टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि भाई मुझे नहीं जाना टैक्स में, आप कैसे भी मुझे टैक्स से बाहर रख लो। तो एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की स्कीम, ये थोड़ी पुरानी स्कीम है, हमारे एक्ट में काफी टाइम से है ये, जो सरकार ने बनाई कि भाई देखो जो छोटे व्यापारी हैं, स्पेशली व्यापार के लिए या प्रोफेशन के लिए, जो छोटे लोग हैं जिनका बहुत 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 बड़ा काम नहीं है, एंड यू नो वन मोर थिंग, अब सरकार के पास भी जो सुविधाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज वेरी वेरी लिमिटेड।
तो उस लिमिटेड को कहीं ऐसा ना हो वो छोटी छोटी चीजों में पड़े रहें, यू नो, दैट हैज टू बी एम्प्लॉयड टुवर्ड्स द बिग केसेस, बिगर केसेस। तो सरकार ने एक रूल बनाया कि भाई ऐसा करते हैं, जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए एक ब्लैंकेट सा प्रोविजन बना देते हैं कि भाई अगर आपकी इतनी तक की टर्नओवर होगी तो हम आपकी इतनी, बिना आपकी किताबें विताबें देखे हम आपकी इतनी इनकम मान लेंगे और उसके ऊपर आप टैक्स दे दो चुपचाप, फिर कोई झंझट नहीं है। छोटे मोटे झंझट हैं लेकिन बेसिकली नहीं है। तो दैट इज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। जो सवाल बार बार मेरे पास आता है कि हम 44 AD में गए हैं, क्या हमें ऑडिट कराने की जरूरत है? अरे यार चले गए ना 44 AD में, प्रिजम्पशन ले ली ना, प्रिजम्पटिव में पहुंच गए तो ऑडिट कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे को प्रिजम्पटिव में ले जाए इसीलिए गया है कि इस तरह की कंप्लायंसेस ना करनी पड़े। ठीक है, लेकिन उसको अभी आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। एक मैं यहाँ पर एक ITAT की डिसीजन है, उसको मैं थोड़ा सा कोट करना चाहूंगी। दिस इज द सेम डिसीजन वी वर टॉकिंग अबाउट, नंदलाल पोटली। इसमें थोड़ा राइटिंग शायद मेरी अच्छी हो गई है समहाउ, इसमें 2-3 सेंटेंस ऐसे लिखे हैं जिससे शायद आपको प्रिजम्पटिव का मीनिंग समझ में आएगा। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म हियर इज डीम्ड टू बी। आप ये जितने भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाले प्रोविजंस पढ़ेंगे ना, इसमें सब में एक फॉर्मूला दिया होता है कि भाई इतने % ऑफ टर्नओवर या इतना पर ट्रक आपकी इनकम विल बी डीम्ड, दैट अमाउंट विल बी डीम्ड टू बी योर इनकम। Deemed to be, that word has been used. The first important term here is deemed to be, which proves that in such cases there is no income to the extent of such percentage. Actually नहीं है आपकी इनकम, however to that extent income is deemed, लेकिन इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। It is undisputed that deemed means presuming the existence of something which actually is not. मतलब जरूरी नहीं है अगर मैं 44 AD में 8% दिखा रही हूँ तो मेरी 8% ही इनकम होगी। Therefore, it is quite clear that though the purpose of levy of income tax 8% or more may be considered as income, but actually this is not the actual income of the assessee. ऐसा नहीं है कि वो मेरी एक्चुअल इनकम होगी, लेकिन वो मानी जा रही है। This is also the purport of all provisions relating to presumptive taxation. जितने भी presumptive taxation के प्रोविजंस है उन सब का पर्पस यही है कि भाई एक फिगर हमने बना ली, हम वो मान लेंगे, अब इसकी कम हो या ज्यादा हो ये भुगतेगा, इतने पर ये टैक्स दे। सो दैट इज द बेसिस। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हमने एक बहुत छोटा सा एक चार्ट बनाया है, इसमें बताने की कोशिश करी है कौन कौन से लोग प्रिजम्पटिव में जा सकते हैं। भाई सब तो जा नहीं सकते, एज आई स्टार्टेड कि भाई छोटे व्यापारी जाएंगे, तो सिर्फ बिजनेस और प्रोफेशन में ये वाली प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की सुविधा दी गई है और किसी हेड में नहीं दी गई है। अगर आप बिजनेस में हैं तो अगर आप या तो आप बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेजेस में होंगे तो आपको प्रिजम्पटिव की सुविधा मिलेगी, वो भी अगर आपके पास साल में किसी भी दिन 10 से ज्यादा कैरेज नहीं होंगे। ठीक है, और अगर आपके पास 10 से ज्यादा कैरेज होंगे तो आपको प्रिजम्पटिव की सुविधा नहीं मिलेगी, आपको नॉर्मल प्रोविजन में जाना पड़ेगा। अब इसके अलावा अगर बाकी सारे बिजनेसेस हैं तो अगर आपकी टर्नओवर पूरे साल में 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो आपको प्रिजम्पटिव की सुविधा मिल जाएगी। अगर 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपको नॉर्मल प्रोविजन में जाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप प्रोफेशन में हैं, बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, जैसे आप सबको पता है एक ही हेड होता है, अगर वो प्रोफेशंस, वो वाले प्रोफेशन है जो 44A में डिफाइंड है, वो भी आगे हम पढ़ेंगे, तो आपको प्रिजम्पटिव की कुछ सुविधा मिल सकती है, प्रोवाइडेड कि आपकी टर्नओवर 50 लाख से कम हो। हमारे जैसे बहुत सारे लोग इस वाले 44ADA में चले जाते हैं। अगर आपकी रिसीट 50 लाख से ज्यादा है तो आपको प्रिजम्पटिव की सुविधा नहीं है, आपको नॉर्मल प्रोविजन में जाना पड़ेगा। और इसके अलावा जितने भी प्रोफेशंस हैं 44AA1 में लिखे हुए प्रोफेशंस जिनकी टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है, उन सबको नॉर्मल प्रोविजन में जाना पड़ेगा। तो एक चार्ट बनाया है हमारे बच्चों ने जिससे पता चलता है कि किस किस को ये वाली सुविधा मिल सकती है। अब जो सेक्शन आज हम जिस पर बात करने वाले हैं वो है 44AA
क्योंकि ए और ए बी से शुरू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो डिफाइन करते हैं किस किस को बुक्स मेंटेन करनी है और किसको ऑडिट करवाना है। ए बी, ए डी, ए ई और ए डी ए, इन सेक्शंस की आज हम बात करेंगे। ए डी ए मैंने शायद सबसे आखिर में इसलिए रखा है क्योंकि जो हमने टॉपिक लिखा था वो बिजनेसेस की बात करता है और ए डी ए प्रोफेशन है। और क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा फील आ रही है कि हमारे पास बातें करने को बहुत सारी हैं, टाइम कम है, तो मैंने मन बनाया है कि 44 AD को हम एंड में लेंगे, जितना टाइम बचेगा उस हिसाब से। सो आई विल स्टार्ट विद 44 AA। ये सेक्शन कहता है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय सर्टेन पर्संस कैरिंग ऑन प्रोफेशन और बिजनेस। अब किताबें किसको मेंटेन करनी है, किसको नहीं करनी, एज आई टोल्ड यू, अगर आप प्रिजम्पटिव में गए हैं तो आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दैट इज नॉट अ ब्लैंकेट रूल। जिस सेक्शन में आप जाते हैं प्रिजम्पशन लेने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं आपको लिखा होगा कि किस सिचुएशन में आपको बुक्स मेंटेन करनी है और किस में नहीं। और एक जनरल सेक्शन है ये 44 AA, जिसमें इन्होंने बहुत क्लियरली सिचुएशंस दिए हैं कि किन सिचुएशंस में किस किस को बुक्स मेंटेन करने की जरूरत है। तो वो हम देखते हैं। सबसेक्शन 1 कहता है, ये प्रोफेशंस की बात करता है। यहाँ इन्होंने 7 प्रोफेशंस को स्पेसिफिकली मेंशन किया है, which are legal, medical, engineering, architectural profession, profession of accountancy, technical consultancy or interior decoration, or any other profession as notified by the board. 7A प्लस अगर बोर्ड ने कोई नोटिफाई किया है तो वो वाले जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उन सबको किताबें मेंटेन करनी पड़ेंगी। इसमें कहीं कोई भी कंडीशन नहीं लगाई हुई है। ऑनेस्टली अभी आपको लग रहा होगा कि फिर हम जो 50 लाख से कम की इनकम दिखाते हैं, ADA में जाते हैं 44, वो क्यों नहीं बुक्स मेंटेन करते? वो वाला जो प्रावधान है वो उस सेक्शन में आ रहा है 44 ADA में, जो मैंने शायद नीचे लिखा हुआ है, नो बुक्स टू बी मेंटेन्ड इफ टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड मैक्सिमम अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। अगर आप ADA में जाते हो और आपकी इनकम थ्रेशोल्ड से ज्यादा नहीं है तो आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, ये हम वहां पर भी पढ़ेंगे। बट 44 AA सेज कि अगर आप इनमें से किसी प्रोफेशन में आते हो तो आपको बुक्स मेंटेन करनी है विदाउट एनी कंडीशन। ये प्रोफेशंस हो गए, मैंने आपको बता दिए, 7 तो सेक्शन में लिखे हैं और ये 3-4 नीचे वाले जो हैं ये नोटिफाई किए हुए हैं बोर्ड ने। कंपनी सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स, ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड फिल्म आर्टिस्ट। फिल्म आर्टिस्ट में बहुत कुछ है, एक्टर, डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत सारे हैं, वो उसमें नोटिफिकेशन में बहुत क्लियरली आ रहा है। तो ये वो वाले प्रोफेशंस हैं जो उस सेक्शन में आ रहे थे। अब इस सेक्शन की जो मेन पार्ट आता है वो तो प्रोफेशन का था, बिजनेस का। इस स्लाइड में हमने सिर्फ ये बताने की कोशिश करी है कि इस सेक्शन का जो सबसेक्शन 2 है, जो बिजनेस से रिलेटेड है मेनली, उसका स्ट्रक्चर क्या है। इट सेज every person carrying on business of profession not being a profession referred to in subsection 1 shall, मतलब वो वाले प्रोफेशन हटा दिए जो मैंने पीछे बताए थे 7+ नोटिफाइड, और इसके अलावा कोई दूसरा प्रोफेशन है या बिजनेस तो है ही, तो उन लोगों को 1, 2, 3, 4 ये क्लॉजेज मैं आगे बताती हूँ। They have to keep and maintain such books of accounts and other documents as may enable the assessing officer to compute his total income in accordance with the provisions of this act। मतलब बहुत क्लियर है कि सारे बिजनेस वाले और जो सबसेक्शन 1 में आ रहे थे वो वाले प्रोफेशंस को छोड़कर जितने भी प्रोफेशंस हैं वो 1, 2, 3, 4 क्लॉज में आते हैं, तो उन्हें बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी। अब हम ये क्लॉजेस देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट क्लॉज कहता है इफ हिज इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। देखिए यहाँ प्रोफेशन वर्ड बार बार यूज होगा क्योंकि ये वो प्रोफेशंस की बात करता है जो 44 AA में डिफाइंड नहीं। मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे टीचिंग हो गया। अभी उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आगे बहुत कहानी है। इफ हिज इनकम एक्सीड्स 1,20,000 रुपीज, अगर 1,20,000 रुपए से ज्यादा है उसकी इनकम, और टोटल सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स इन बिजनेस ऑफ प्रोफेशन एक्सीड और एक्सीड्स 10 लाख रुपीज, या फिर 2 कंडीशंस दी हैं, या तो उसकी इनकम एक्सीड करती हो 1,20,000 से, या उसकी टर्नओवर एक्सीड करती हो 10 लाख रुपए से,
in any one of the 3 years immediately preceding the previous year. पिछले 3 सालों में से किसी भी एक साल में अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी. इसको अगर नाक को ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़े, कान को कहते हैं जो भी है. तो द पॉइंट इज कि अगर एक बार बुक्स मेंटेन हो गई तो आपको 3 साल तक करनी पड़ेगी. चलिए इसकी भी बात आगे करेंगे. सेकंड क्लॉज है where the business of profession is newly set up in any previous year if his income from business of profession is likely to exceed 1,20,000 rupees or his total sale turnover gross receipts as the case may be in business of profession or is likely to exceed 10 lakh rupees during such previous year. अब आप कहेंगे कि मेरा तो पहला साल है तो मेरे पास तो पिछले 3 साल है नहीं जिसमें आप देखेंगे मेरी कितनी टर्नओवर है. तो इन्होंने कहा अगर पहला साल है तो इफ इट इज लाइकली टू एक्सीड तो आप बुक्स मेंटेन कर लो. दिस इज अ जनरल प्रोविजन. नेक्स्ट इज वेयर द प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम द बिजनेस आर डीम्ड टू बी प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ द असेसी अंडर सेक्शन 44AE. मैं यहाँ क्लैरिफाई कर दूं आपको, दो हम आगे पढ़ने वाले हैं इसको. 44AE वो वाले बिजनेस होते हैं हायरिंग, प्लाइंग एक्सेट्रा ऑफ गुड्स कैरेज वाले. अगर आप उस बिजनेस में हैं या 44BB में है या BBB में है. BB इफ आई एम रिकॉलिंग राइट वो पेट्रोलियम से रिलेटेड ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल वगैरह, नॉन रेजिडेंट्स का है. BBB फॉरेन कंपनी से रिलेटेड होता है, टर्न की प्रोजेक्ट्स वाला. इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन मैंने क्योंकि सेक्शन कॉपी करा है तो ये आएगा यहाँ पर. अगर आप 44AE में आ रहे हो एज द केस में बी and the assessee has claimed his income to be lower than the profits or gains so deemed to be the profits and gains of his business as the case may be during such previous year. अब इसको जरा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. अगर आप 44AE वाले बिजनेस में हो, उसकी डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे. मतलब आप वो रनिंग, फ्लाइंग, हायरिंग ऑफ व्हीकल्स वाले बिजनेस में हो तो वहां एक मैकेनिज्म दे रखा है जिसके हिसाब से आपकी इनकम प्रिज्यूम करी जाएगी. ठीक है, अगर आप उसको मानते हो, उस पर टैक्स देने को तैयार हो, उस पर या उससे ज्यादा पर, तो ठीक है. लेकिन आपको लगता है कि यार ये तो खामखा में इतना सारा टैक्स ले रहे हैं, मेरे पास तो इतनी आमदनी है ही नहीं, मेरा इतनी इनकम ही नहीं है, तो मैं उससे कम दिखाना चाहती हूँ. ये तो आपका फंडामेंटल राइट है ना कि अगर कम इनकम है तो आप क्यों देंगे ज्यादा टैक्स. तो आप ऑप्ट कर सकते हैं, यू कैन ऑप्ट दैट. लेकिन उस केस में आपको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी. जिस सवाल की मैं बार बार बात कर रही हूँ, जो मेरे पास बहुत आता है कि हमें बुक्स कब मेंटेन करनी है. भैया अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के साथ नहीं जाते हो, उससे कम ही तो जाओगे. ज्यादा तो प्रिजम्पटिव में भी अलाउ होता है, या तो इतना दिखा दो या उससे ज्यादा दिखा दो. कम में जाओगे तो बुक्स मेंटेन कर लो, ऑडिट करा लो. चलिए अब इसमें एक इशू निकल कर आ रहा था 44AE, BB, BBB. If claiming lesser income, books to be maintained even if income does not cross threshold. जो मैक्सिमम इनकम एग्जेम्प्ट होती है ना, जो नीचे वाला स्लैब होता है, अगर आपकी इनकम उससे भी कम है, आपके लॉसेस भी हैं, क्योंकि इसमें वो वाली कंडीशन नहीं दी है कि आपकी थ्रेशोल्ड से ज्यादा इनकम होनी चाहिए. जैसे ही आप इससे नीचे दिखाना चाहते हो, आपको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी. Next, fourth, where the provisions of subsection 4 of section 44AD are applicable in his case and his income exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax in any previous year. ये थोड़ा सा इसके ऊपर हम लंबी बात करेंगे. देखिए, हम जिन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाले के सेक्शंस की बात करेंगे वो मेरे लिए 44AD, ADA और 44AE. ये BB और BBB अभी फिलहाल मैं छोड़ रही हूँ. 44AE के लिए तो क्लॉज 3 में बहुत क्लियरली लिख दिया गया है कि अगर आप उससे कम दिखाना चाहते हो तो गो फॉर मेंटेनिंग योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है. 44ADA का जिक्र मैं पहले कर चुकी हूँ जब प्रोफेशन की बात हो रही थी. बाकी बच गया 44AD, जो कि सबसे नॉर्मल, जनरली सबसे ज्यादा यूज होने वाला सेक्शन होता है, जिसमें नॉर्मल बिजनेसेस आते हैं जिनके 2 करोड़ से ज्यादा जिनकी टर्नओवर नहीं होती है. और हम लोग, आप सभी मानेंगे इस बात को कि बहुत सारी रिटर्न्स भरते हैं 44AD में.
लेकिन 44 AD में आपको कब कराना है ऑडिट? अगर आप 44 AD 4 में आते हो, देखिए 2 कंडीशंस लिखी हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 44 AD वाले लोगों को, जो 44 AD के अंदर घूम रहे हैं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो मैं आगे समझाऊंगी। अगर आप 44 AD 4 में आते हैं और आपकी इनकम एक्सीड होती है मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, इसको मैं थ्रेशोल्ड बोलती हूँ, थ्रेशोल्ड से आपकी इनकम ज्यादा है और आप 44 AD 4 में हो, सिर्फ तब आपको ऑडिट कराना है। देखिए मैंने इसीलिए ये सेक्शंस कॉपी करे हैं, शायद आप इस बात को मानेंगे कि अगर ये 4 क्लॉजेस दिए हैं बिजनेस हेड में, तो इन 4 में ही ऑडिट कराना है, 4 के अलावा किसी और में ऑडिट नहीं कराना। पहला था नॉर्मल बिजनेस में अगर इतनी आपकी टर्नओवर हो और इतनी आपकी इनकम हो तो आपको बुक्स मेंटेन करनी है। दूसरा था अगर आपका फर्स्ट ईयर है तो लाइकली टू एक्सीड है तो करानी है। तीसरा 44 AE वाला था, जिसमें सिंपली ये कहा गया कि अगर 44 AE से कम दिखाना है तो आपको बुक्स मेंटेन करनी है। अब ये चौथा 44 AD वाला है, 44 AD वालों को सिर्फ तब बुक्स मेंटेन करनी है अगर वो 44 AD 4 में आते हैं और उनकी इनकम थ्रेशोल्ड से ऊपर है। 44 AD में बहुत हल्का सा यहाँ बता देती हूँ क्योंकि इसका लंबा डिस्कशन होगा, हमारे टॉपिक का भी नाम वही है, ऑप्टिंग आउट। 44 AD में आप तब आते हैं अगर आपने एक बार 44 AD ऑप्ट कर लिया, एक साल में ऑप्ट कर लिया और उसके बाद किसी अगले साल में आपने, अगले 5 सालों में से किसी एक साल में आपने कहा नहीं मैं ऑप्ट नहीं कर रहा, किसी भी वजह से, वो वजह वगैरह हम वहां डिस्कस करेंगे जब 44 AD में जाएंगे, तो क्या होता है, तो आपको उसके अगले 5 साल तक 44 AD मिलता ही नहीं है। अगर आप एलिजिबल भी होते हैं, एसएससी भी एलिजिबल होता है और बिजनेस भी एलिजिबल होता है, लेकिन आपको 44 AD नहीं मिलता 5 साल तक। तो वो जो 5 साल का पीरियड है ना, दैट कम्स अंडर 44 AD 4। एम आई क्लियर? तो उन केसेस में आपको ऑडिट कराना है, वो भी तब अगर आपकी इनकम थ्रेशोल्ड से ज्यादा। इसमें कुछ इश्यूज आ रहे थे। नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनिंग बुक्स इफ ऑप्टेड फॉर 44 AD। अब इन चारों में ये तो कहीं नहीं लिखा कि इफ यू गो फॉर 44 AD यू हैव टू मेंटेन द बुक्स, नहीं। तो ऑनेस्टली जो बहुत ज्यादा सवाल आ रहा है कि 44 AD में जा रहा हूं लेकिन मेरी इनकम एक्चुअली बहुत ज्यादा है, तो क्या मुझे बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी, ऑडिट कराना पड़ेगा? नहीं, नॉट एट ऑल। मैंने चारों क्लॉजेस पढ़कर बता दिए, ठीक से समराइज भी कर दिए। टू कीप बुक्स ऑफ अकाउंट्स इफ क्लेम लेस देन इनकम प्रिज्यूम्ड अंडर सेक्शन 44 AD, ये आगे डिस्कस होगा। इन सबसेक्शन 4, if subsection 4 of section 44 AD is applicable, books to be maintained only if income exceeds threshold। मतलब उन 5 सालों में भी अगर आपकी इनकम थ्रेशोल्ड से कम है तो आपको बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अब ये 2 प्रोवाइजो दे रखे हैं, ये मैं पढ़ूंगी नहीं, वैसे ही बता देती हूँ। इंडिविजुअल और HUFs के लिए उन्होंने वो जो ऊपर वाली लिमिट थी ना 1,20,000 और 10 लाख वाली, उसको 2.5 लाख और 25 लाख कर रखा है, बस इतना सा फर्क है। जब आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम देखेंगे या अपना टर्नओवर देखेंगे तो 2.5 लाख और 25 लाख देखेंगे, वो 1,20,000 और 10 लाख नहीं देखेंगे। ये थोड़ा सा स्किप कर दूंगी। इसमें बोर्ड को पावर दी है, वो आपसे क्या क्या करवा सकता है, कहाँ बुक्स मेंटेन करने के लिए कह सकता है और कितने सालों तक मेंटेन करने के लिए कह सकता है। ये थोड़ा सा इसका वो है, अगर आप बुक्स मेंटेन नहीं करते तो आपके ऊपर 271A की पेनल्टी लगती है जो 25,000 रुपए है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मीनिंग दे रखा है सेक्शन 212A में, और क्या बुक्स जनरली मेंटेन करनी चाहिए वो रूल 6F में लिखा है। ये कैश बुक, लेजर, जर्नल, कार्बन कॉपीज वगैरह। मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी बिकॉज बहुत सारा मटेरियल है जो मुझे लग रहा है आज पूरा नहीं होने वाला 2 घंटे में। ये एक फ्लो चार्ट टाइप बनाने की कोशिश करती है 44AA में कि अगर प्रोफेशन में है तो किन किन सिचुएशंस में आपको बुक्स मेंटेन करनी है, और अगर बिजनेस में है तो आपको किस सिचुएशन में बुक्स मेंटेन करनी है। इसको यहाँ ज्यादा डेलिब्रेट नहीं करूंगी क्योंकि इट विल टेक लिटिल मोर टाइम। चलिए, ये हो गया 44AA, कहाँ बुक्स मेंटेन करनी है, कहाँ नहीं करनी। अब आता है 44AB।
जो ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सर्टेन पर्संस कैरिंग ऑन प्रोफेशन और बिजनेस की बात करता है। बुक्स तो मेंटेन कर लो, लेकिन जरूरी नहीं है आपको बुक्स मेंटेन करने के बाद बुक्स ऑडिट करानी पड़े। तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि काफी जगह पर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स और ऑडिट ऑफ बुक्स साइड बाय साइड चलता है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमेशा जब भी बुक्स मेंटेन करोगे आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, उसके अलग रूल्स हैं। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर है सेक्शन का, वो कहता है एवरी पर्सन, फिर उन्होंने 5 क्लॉजेस दिए हैं, A to E, A B C D E, इसमें कोई सबसेक्शन नहीं है। गेट हिज अकाउंट्स ऑफ सच प्रीवियस ईयर ऑडिटेड बाय एन अकाउंटेंट बिफोर द स्पेसिफाइड डेट एंड फर्निश बाय दैट द रिपोर्ट that date the report of such audit in prescribed form duly signed and verified by such accountant and setting forth such particulars as may be prescribed। ये एक्ट की लैंग्वेज है, ये हम सबको पता है। Being chartered accountant, all of us know कि ये क्या होता है, ऑडिट करना होता है। इसकी एक मिनट मैम बीच में सभी मेंबर्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैट बॉक्स में क्वेश्चन आंसर्स ना डालें, सिर्फ Q&A में डालें, और क्वेश्चन एंड आंसर्स लास्ट में लेंगे क्योंकि बहुत सारी स्लाइड्स हैं मैम की। पहले हम समझ लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर शायद अपने आप ही आ जाएंगे, उसके बाद लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। जरूरत पड़ी तो सेशन का टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, नो इश्यूज। हाँ सतीश जी, मुझे आज फील है कि थोड़ा मटेरियल बहुत सारा है मेरे पास, आई डोंट नो कितना जस्टिफाई हो पाएगा, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। सुनने के लिए तैयार हैं, बैठे हैं। और अभी आपको इस समय पता है, हमारा स्कोर 300 टच कर रहा है। अब आपको सुनने के लिए 300 लोग यहाँ बैठे हैं। देखो, आपको पता है सतीश जी, ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वीना जी भी जानती हैं, शायद जगजीत जी इतना नहीं जानते होंगे कि मुझे बहुत शौक है बोलने का, जितना मर्जी बुला लो। मैं हर बार शास्त्री नगर से जब आती हूँ, सेमिनार जब करते थे हम, तो मैं हमेशा ये बोलकर आती थी कि साहब इस टॉपिक पर तो मैं 2 दिन बोल सकती हूँ, आपने 1 ही घंटा दिया। 148 We are waiting मैम, पूरा सुनेंगे हम, पूरा सुनेंगे। आपको सुनने में टाइम का पता नहीं चलता। ओह गुड, थैंक यू। चलिए, तो ये मैंने स्ट्रक्चर बताया। एवरी पर्सन, क्लॉजेस दे रखे हैं A to E, उनको ऑडिट कराना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराना पड़ेगा, विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम कराना पड़ेगा, प्रेस्क्राइब फॉर्म है, साइन है, वेरिफिकेशन, ये। अब ये A to E जो क्लॉजेस हैं, मैं वो समझाना चाहूंगी। फर्स्ट क्लॉज A, कैरिंग ऑन बिजनेस, एनी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस, ये सिर्फ बिजनेस की बात करता है। शैल, इफ हिज टोटल सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स एज द केस में बी इन बिजनेस exceed or exceeds 1 crore rupees in any previous year। मैं ये तीन के तीन टर्म्स नहीं बोलूंगी। आपकी टर्नओवर, सेल्स या ग्रॉस रिसीट्स, टर्नओवर जब भी 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी बिजनेस में, तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। अब इसमें कुछ 2 प्रोवाइजोस जो अभी असेसमेंट ईयर 2021 से ही आए हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है, वो जो वो जो सरकार के मन में रहता है ना कि सब काम बैंकिंग चैनल से हो, कैश में ना हो, तो उन्होंने कहा जितनी भी आपकी रिसीट्स हैं और जितनी भी आपकी पेमेंट्स हैं, अगर नॉट मोर देन 5% ऑफ दैट हैज बीन मेड थ्रू कैश, मतलब 5% ऑफ रिसीट्स और 5% ऑफ पेमेंट्स अगर कैश में उससे ज्यादा नहीं हुई है, तो हम ये जो थ्रेश होल्ड है ना 1 करोड़ का, इसको 5 करोड़ कर देंगे। आपको मतलब 5 करोड़ तक में आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं। ये एक इंसेंटिव दिया गया है सो दैट सब बैंकिंग चैनल से काम करें, और इसमें डेट दी गई है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, क्योंकि कैश का मामला हो गया ना, तो ये तो कैश सिस्टम हो जाएगा ऑलमोस्ट, बट यू हैव टू प्रूव। आई डोंट नो कितने लोग होंगे, 5% तो बहुत कम होता है, बट इस तरह के बिजनेसेस में 5%, सिर्फ 5% अदर देन बैंकिंग चैनल हो, दैट इज डिफिकल्ट। चलो देखते हैं प्रैक्टिकली जब होगा। तो ये पहला क्लॉज है जो कहता है अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, और कैश वाला मामला आ गया तो 5 करोड़ कर दिया। इसका सिर्फ इतना ही रोल है, इस वाले प्रोवाइजो का सिर्फ इतना ही रोल है कि 1 करोड़ को 5 करोड़ कर देता है, बाकी चीजों पे इसका खास इफेक्ट नहीं आता। क्योंकि मेरे को सतीश जी ने कुछ क्वेरीज भेजी थी, उसमें मुझे लग रहा था इससे कुछ कंफ्यूजन आ रहा है, वो हम जब क्वेरीज लेंगे तो आई क्लैरिफाई। वो मेंबर्स ने मेरे को मेल्स पे और व्हाट्सएप पे क्वेरीज भेजी थी, तो मैंने इसलिए भेज दी थी कि ताकि तो वो A क्लॉज हो गया। B कहता है कैरिंग ऑन प्रोफेशन शैल
if his gross receipts in profession exceeds 50 lakh rupees. प्रोफेशन वालों के लिए 50 लाख रख दिया. ये शायद वो ADA से रिकंसाइल करने के लिए 50 लाख रखा गया. एंड प्लीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, कैरिंग ऑन प्रोफेशन लिखा है, इसमें ये नहीं लिखा प्रोफेशन ओनली दोज प्रोफेशंस व्हिच वर मेंशन्ड इन सेक्शन 44AA1. जो वो 7 प्लस वो 3 मैंने वो नोटिफाइड वाले पढ़े थे, उनके अलावा भी अगर प्रोफेशन है तो 50 लाख की थ्रेशोल्ड है. सी, अब वही ढर्रात चल रहा है. जैसे मैं 44AA में आपको बता रही थी, पहले प्रोफेशन की बात करी उसने, सबसेक्शन 1 में प्रोफेशन की बात करी थी, फिर सबसेक्शन 2 में उसने 4 हिस्से बनाए, बिजनेस की बात करी. इसने सबसेक्शन नहीं बनाई, ये सीधे क्लॉजेज पर आ गया, तो इसने 5 बना दिए. एक बिजनेस का बनाया, एक प्रोफेशन का बनाया. अब ये तीसरा इसने 44AE का बनाया. BB और BBB मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये साथ साथ चलते हैं. अगर आप वो गुड्स कैरेज वाले बिजनेस में हैं तो क्या होगा? इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर दैट and he has claimed his income to be lower than the profits or gains, आपने ऑप्ट नहीं किया, आप एलिजिबल हो उसमें, और आप कहते हो नहीं मैं नहीं दूंगा, जितनी आप प्रिज्यूम कर रहे हो उतनी मेरी इनकम नहीं है, मैं तो उससे कम में दूंगा, तो आपको अलाउ है, आप कम दे सकते हो. सो डीम टू बी द प्रॉफिट एज द केस में बी इन एनी प्रीवियस ईयर. अगर किसी भी साल में मैं ये कहती हूँ कि मैं काम तो गुड्स कैरेज वाला करती हूँ, आई एम एलिजिबल फॉर 44AE, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगी, मैं उससे कम इनकम दिखाऊंगी, तो मुझे ऑडिट कराना पड़ेगा. अब जरा इसको सिंक्रोनाइज कीजिए. बुक्स मेंटेन भी करनी थी, बुक्स ऑडिट भी कराना है विदाउट एनी कंडीशन. आपको चाहे लॉसेस हो रहे हो, आपका कम प्रॉफिट हो रहा हो, आपका ज्यादा प्रॉफिट हो रहा हो, जो भी हो रहा हो, अगर आप 44AE ऑप्ट नहीं करते हैं, दो यू आर एलिजिबल. थोड़ा सा फर्क है इन दोनों टर्म्स में. एलिजिबिलिटी आती है सेक्शन से जहां कंडीशंस दी होती है. जैसे 44AE में कंडीशन ये है कि आपके पास 10 से ज्यादा गुड्स कैरेज नहीं होने चाहिए पूरे साल में किसी भी दिन. मेरे पास ट्रक्स हैं, मैं उनको चलाने का काम करती हूँ, और मेरे पास पूरे साल में 8 ट्रक रहे, कभी 7 रहे, कभी 6 रहे, लेकिन 10 से ज्यादा कभी नहीं हुए, तो आई एम एलिजिबल फॉर 44AE. फिर उन्होंने कंप्यूटेशन दे दिया कि उसके हिसाब से आपकी इनकम मान ली जाएगी. एक खासियत 44AE की ये है कि वो ये नहीं देखता कि आपने काम कितना किया है. मतलब मेरे वो 8 के 8 ट्रक बाहर खड़े भी हैं, पूरे साल उन्होंने कुछ काम नहीं किया, तब भी इन्होंने प्रिज्यूम करना है जो भी इन्होंने कैलकुलेशन दिया उसके हिसाब से. अब मेरे को लगता है कि मेरा तो है ही नहीं, मैंने काम ही नहीं किया, भाई मैं क्यों दूंगी इतना टैक्स. तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं कम दूंगी, मेरे तो लॉसेस हैं. अगर लॉसेस हैं, वो कहते हैं आपको हम अलाउ कर देंगे, लेकिन आपको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी और बुक्स का ऑडिट कराना पड़ेगा. ये जरा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये सवाल, इन सवालों में हम गड़बड़ा जाते हैं कई बार. इसमें मैंने एक छोटा सा इसमें एक इशू ये आता है, एक जो 10 की लिमिट आप बता रहे हो, वो 10 ट्रक्स या 10 गुड्स कैरियर्स की बात है ना? गुड्स कैरेज, यस. तो 10 गुड्स कैरियर्स मेरे अपने होने चाहिए या मेरे एसोसिएट्स के मिला के? सतीश जी जरा आते हैं 44AE, ठीक है मैम, डिफाइंड है उसमें. अब ये मैं कह रही थी कि 5 हिस्से बनाए गए हैं 44AA के भी, AB के भी. AB में थोड़ा सा क्लॉजेज आ रहे हैं ABCD. AA में सबसेक्शन 1 था और सबसेक्शन B के 4 क्लॉजेज थे. अब हम 4th क्लॉज में आ जाते हैं. प्लीज इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर नोट कीजिएगा, उससे ना समझने में, रिटेन करने में, कंटेन करने में आसानी होगी. जैसे मैंने कहा, पहले बिजनेस, फिर प्रोफेशन, उसके बाद 44AE, अब आ गया 44ADA. ADA जो ADA में जाते हैं प्रोफेशन, उनके लिए इसने कहा एंड ही हैज क्लेम्ड सच इनकम टू बी लोअर देन द प्रॉफिट्स एंड गेन्स सो डीम्ड टू बी द, मतलब जो 44ADA में मैकेनिज्म दिए हैं, आप कहते हो नहीं भाई मेरी तो उससे कम इनकम है, तो and his income exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax in any previous year. अब फर्क आ गया ना. प्रोफेशनल के केस में अगर मैं एलिजिबल हूँ 44ADA में जाने के लिए, लेकिन मैं कहती हूँ मैं कम इनकम दिखाऊंगी, तो मेरी इनकम अगर थ्रेशहोल्ड से ज्यादा होगी, सिर्फ तब मुझे ऑडिट कराना है. और अगर आपको याद हो तो पीछे 44AA में ये भी लिखा था कि आपको किताबें भी तभी मेंटेन करनी है अगर आपकी इनकम थ्रेशहोल्ड से ज्यादा. ये कुछ चीजें हैं जो सेक्शन वाइज डिफरेंट है. हमने कोशिश करी है मेरी टीम ने
इसको रिटेन करने के लिए हमने कुछ फ्लो चार्ट, कुछ डायग्राम्स और कुछ टेबल्स टाइप बनाई हैं सो दैट वो रिटेन हो सके। अदरवाइज थोड़ा सा याद करना पड़ता है कि इस सेक्शन में ये है, इस सेक्शन में ये नहीं है। नेक्स्ट आ गया ई फिफ्थ, जो 44 एडी की बात करता है। ई की बात हुई, फिर एडीए की बात हुई, अब एडी की बात करता है। एडी में वो कहता है, ये पूरा पढ़ना चाहूंगी, इफ द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 44 एडी आर एप्लीकेबल इन हिज केस and his income exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax in any previous. 44 AD वाले टैक्स ऑडिट कब कराएंगे? सिर्फ अगर वो 44 AD 4 में आते हो, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, किताबें मेंटेन करने के लिए भी अगर आपने एक बार ऑप्ट करके ऑप्ट आउट कर लिया, एक बार ऑप्ट करने के बाद अगर नहीं किया तो आप नॉर्मल में चलते रहिए, कोई टेंशन नहीं। अगर आपने एक बार ऑप्ट कर लिया तो जिस साल में पहली बार आप ऑप्ट आउट करेंगे उससे अगले 5 साल आपको एडी नहीं मिलेगा। तो जो 5 साल है दोज कम अंडर 44 AD 4। अगर आप 44 AD 4 में आते हो तो आपको ऑडिट करवाना है, वो भी अगर योर इनकम इज मोर देन द थ्रेशहोल्ड लिमिट। maximum your income exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax in any previous year. I think I have made myself clear. लेकिन ये 44 AD 4 वगैरह थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे जब वहां सेक्शन में आएंगे। इसमें कुछ इश्यूज आ रहे थे, कंडीशंस फॉर ऑप्टिंग आउट ऑफ सेक्शन 44 AD, ये वहां पढ़ेंगे। ओनली क्रॉसेस थ्रेशहोल्ड लिमिट, डेफिनेटली ये सेक्शन में ही लिखा हुआ है। 44 AD 4 में आते हो वो 5 साल, और उनमें जिस साल में आपकी थ्रेशहोल्ड से ज्यादा इनकम होगी सिर्फ तब आपको बुक्स भी मेंटेन करनी है और आपको ऑडिट भी कराना है। Definitely applicable only to those assessees who having once opted, ये ध्यान रखिए, अगर आपने कभी ऑप्ट ही नहीं किया, even if you are eligible, आप एलिजिबल हैं लेकिन आपने कहा नहीं मैं नहीं ऑप्ट करती, मैं तो बुक्स मेंटेन कर रही हूँ और ऑडिट करा रही हूँ, तो ये वाले प्रोविजन नहीं लगेंगे। What if first year eligible for 44 AD, इसको वहीं पढ़ेंगे, ये थोड़ा इसकी पोजिशनिंग गलत हो गई है। अच्छा, ये कुछ प्रोवाइजो डाले हुए उन्होंने, प्रोवाइडेड फर्दर दैट दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द पर्सन हु डिराइव्स इनकम ऑफ द नेचर, ये रेलेवेंट नहीं है, ये पुरानी बात करता है। नेक्स्ट इज ये सेकंड प्रोवाइजो, ये कहता है जैसे हम कंपनीज एक्ट में हमें ऑडिट कराना होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना होता है, किसी और लॉ के हिसाब से अगर आपको ऑडिट कराना है तो उसकी रिपोर्ट भी आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के साथ लगाकर भेजनी पड़ेगी, सेम टाइम। फिर इन्होंने अकाउंटेंट और स्पेसिफाइड डेट का मीनिंग दे दिया। स्पेसिफाइड डेट आपको पता है अभी बदल गई थी कि 1 महीने पहले फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। जैसे इस बार नवंबर की डेट है ड्यू डेट रिटर्न फाइलिंग की, तो आपको अक्टूबर तक ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ेगी, पहले हम साथ में देते थे, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। 31 अक्टूबर है ना टैक्स ऑडिट की रिटर्न फाइलिंग की डेट, क्योंकि रिटर्न की नवंबर है ना, तो टैक्स ऑडिट की अक्टूबर है। नहीं, मेरे हिसाब से टैक्स ऑडिट की 30 सितंबर है और टैक्स ऑडिट वाले केसेस की रिटर्न 31 अक्टूबर। आई एम सॉरी, क्योंकि कैलकुलेशन बनाई थी, इस तरह के काम करती नहीं हूँ तो इसलिए। सर वो 31 मार्च वाली जो पुरानी वाली रिटर्न भरने की डेट ही सितंबर चलेगी, तो वो भी आगे शिफ्ट हो गई है सर। टैक्स ऑडिट की 31 अक्टूबर है और रिटर्न्स की 30 नवंबर। नॉर्मल टैक्स ऑडिट वाली 30 नवंबर है। मैं ये पढ़ देती हूँ ना, इससे क्लियर हो जाएगा। Specified date in relation to the accounts of the assessee of the previous year relevant to an assessment year means date 1 month prior to the due date for furnishing the return of income under section 139(1). इसमें अब मुझे नहीं पता, अगर आपके अक्टूबर है तो सितंबर में दो, नवंबर है तो अक्टूबर में दे दो, 1 महीने पहले, ठीक है। आई एम सॉरी अगर मैं उसमें गलत बोल रही हूँ। ये एक हमने समराइज करने की कोशिश करी है कि किन लोगों को किन सिचुएशंस में ऑडिट कराने की जरूरत है। बिजनेस को 3 पार्ट्स में बांटा है, फ्लाइंग हायरिंग वाले बिजनेस जो 44 AD में आ सकते हैं, अदर बिजनेसेस, ऐसे ही प्रोफेशन को 44 AA वाले प्रोफेशंस और अलग दूसरे वाले प्रोफेशन। मैं इसको पढ़ूंगी नहीं, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन ये मैं PPT शेयर कर लूंगी सतीश जी के साथ, तो इट विल कम हैंडी टू मोस्ट ऑफ यू। अब इसमें कुछ हमने इश्यूज निकाले।
मोस्टली इश्यूज आते हैं जो, क्योंकि ये टर्नओवर बेस्ड है, कि आपकी टर्नओवर के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको ऑडिट कराना है या नहीं कराना। तो हमें हमारे इंस्टीट्यूट का एक गाइडेंस नोट है, उसमें से हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें लगे वो निकाल लिए हैं, वो मैंने लिख लिए हैं। बाकी आप कोशिश कीजिए वो गाइडेंस नोट पढ़ लें, उसमें बहुत क्लियरली बहुत डिटेल में दिया हुआ है कि कौन सी टर्नओवर में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, कैसे कैलकुलेट होगा। Ancillary charges, packing, freight, forwarding, interest, commission, etc. should be excluded from turnover. If where separate demarcation of these charges is not possible, turnover will include these charges. If charges represent reimbursement of actual cost, these will not form part of turnover. भाई जैसे बिल बनाते हो, उस बिल में अगर अलग से नहीं लिख पाते हो, एक साथ लिखा है तो वो टर्नओवर में ऐड हो जाएगा, और अगर अलग है ये वाले एंसिलरी चार्जेस तो ऐड नहीं होगा। If the sale proceeds of any share, security, debenture, etc. held as investment, then it will be excluded. Otherwise, if held as stock in trade, then included. इसमें कोई ज्यादा मारामारी नहीं है। कोई भी चीज जो इन्वेस्टमेंट होगी डेफिनेटली वो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ माय बिजनेस, तो वो टर्नओवर में नहीं है। सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट्स और सेल ऑफ स्क्रैप शुड बी इंक्लूडेड इन कंप्यूटिंग द टर्नओवर, क्योंकि वो तो बिजनेस का ही पार्ट हो गया ना। जो आपने कुछ मैन्युफैक्चरिंग करी, कुछ बाय प्रोडक्ट निकला या स्क्रैप निकला, तो वो डेफिनेटली अगर आप उसको बेचते हैं तो दैट इज अ पार्ट ऑफ टर्नओवर। इन केस ऑफ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, द डिफरेंस बिटवीन टोटल फेवरेबल and unfavorable is to be considered as turnover for the purpose of deciding the limit under. आपको फ्यूचर्स ऑप्शंस में या डेरिवेटिव्स में फायदा हुआ या नुकसान हुआ, उसका उनसे कोई मतलब नहीं है। जितना भी आपने फायदे वाले काम किए और जितने आपने नुकसान वाले किए, दोनों को ऐड करके टर्नओवर मानी जाएगी। स्पेशल रिबेट अलाउड टू कस्टमर, कस्टमर को कोई डिस्काउंट दे दिया, नॉट बीइंग इन द नेचर ऑफ कमीशन, कमीशन ऑन सेल नहीं है तो शुड बी एक्सक्लूडेड। हमने डिस्काउंट दे दिया तो डेफिनेटली मेरे को टर्नओवर उतना कम ही आया ना। द वैल्यू ऑफ स्टॉक सरेंडर ड्यूरिंग सर्वे शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टर्नओवर। ये भी आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेन्ड है, क्योंकि मेरे यहाँ सर्वे हुआ, मैंने कुछ स्टॉक सरेंडर कर दिया तो डेफिनेटली उस पर तो मैंने अलग से टैक्स दे दिया ना, तो उसको आप मेरी टर्नओवर में ऐड नहीं कर सकते। ट्रेड डिस्काउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स। कैश डिस्काउंट अदरवाइज देन that allowed in cash memo sales invoices should not be deducted from turnover as it is a financing charge. ये सारे गाइडेंस नोट में से निकाले हमने। Bad debts written off should not be excluded, definitely not excluded. The exchange difference net on export sales are included in the gross receipts only if the same is not credited to a separate account. तो generally मैंने देखा है कि उसका हम लोग separate ही account बनाते हैं। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, सीएज और एडवोकेट्स वगैरह ले लेते हैं ना, कुछ ऊपर के खर्चे होंगे, तो दैट विल बी पार्ट ऑफ ग्रॉस रिसीट्स। कहीं लेना देना होगा, साहब इतने पैसे अलग से ले लिए, तो वो दैट इज अ पार्ट ऑफ टर्नओवर। रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड है वेबिनार। आउट ऑफ पॉकेट तो कुछ भी हो सकता है ना, एनी एक्सपेंस। चलिए, नहीं मैंने कहा मैं बता दूं। आई नो। Advance received from customers forfeited are to be included in gross receipts. Advance लिया था, उसको नहीं सप्लाई करी, लेकिन मैंने forfeit कर लिया, तो डेफिनेटली वो मेरी आमदनी हो गई। Write back of amounts no longer payable to creditors not to be included in terms of gross receipts. ये सारे गाइडेंस नोट में से छापे हैं हमने। मैडम एक बार पिछली स्क्रीन पे आए मैम। हाँ जी, एक रह गया ना शायद, reimbursement of expenses incurred are included in the gross turnover if the same are not credited to a separate account and expenses incurred are debited to that account, then only the net surplus should be added. ये it's a pure accounting. अब इसमें इन तीनों पे ही है, मतलब अगर हमने पैकिंग के या जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं, सपोज हमने कुछ कस्टमर से चार्ज किए, अब अगर हमारा सपोज हमने टोटल मिला के 10 लाख रुपए हमने चार्ज किए कस्टमर से और हमारा खर्चा 10 लाख से ज्यादा है, तो नेट ऑफ होके नेट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर 10 लाख के खर्चे किए और रिकवरी हमारी 10 लाख से ज्यादा से 11 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए हमें टर्नओवर में ऐड करना है। एक ये बात। दूसरा आपने जो बताया एडवांस रिसीव और फॉरफिट कर ली तो ग्रॉस रिसीट में ऐड करेंगे। बहुत बार होता है डेटर्स का, या तो हम डेटर्स और क्रेडिटर्स से भी, दोनों में किसी से रूटीन में पेमेंट आ रही है, डेटर से पेमेंट आ रही है, एडवांस पेमेंट आती है और उसको माल चला जाता है।
एट द एंड ऑफ द ईयर हमें नजर आता है कि 1000 रुपए 500 रुपए छोटे मोटे कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिट बच गया जो कि वो क्लेम ही नहीं कर रहा और अब उससे काम भी बंद हो गया, तो 1000-1500 रुपए जो उसके क्रेडिट में आए हुए हैं उसको हम शॉर्ट एंड एक्सेस रिकवरी अकाउंट या उसमें डाल लेते हैं, या बेड डेट्स को क्रेडिट कर देते हैं, अपने बेड डेट्स कम कर लेते हैं। तो वो वाला हमने हमें यहाँ पर आपने जो बताया गाइडेंस नोट के हिसाब से रिटर्न ऑफ शुड नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टर्नओवर। नहीं, इस तरह से अगर आपने क्रेडिटर्स को राइट बैक कर दिया है, हाँ जी, नॉट दैट विल नॉट इफेक्ट योर टर्नओवर। हाँ, अगली स्लाइड में सबसे लास्ट पॉइंट आपने वही लिखा है, ये राइट बैक ऑफ अमाउंट नो लॉन्गर पेबल टू क्रेडिटर्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द, अच्छा, नॉट टू बी इंक्लूडेड, राइट, दैट मेक सेंस। यस यस मैम। ये चार्ट थोड़ा सा बताना चाहूंगी, आई टेक 2 मिनट्स ओनली, मैं थोड़ा टाइम पर मेरा ध्यान जा रहा है। ये सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए हमने एक समरी सी बनाई है कि उनको कब बुक्स मेंटेन करनी है, कब ऑडिट कराना है। फर्स्ट इज इफ दे आर एलिजिबल फॉर 44 ADA एंड ऑप्ट्स फॉर इट। आप एलिजिबल भी हैं और ऑप्ट भी करते हैं। एलिजिबल हैं, ऑप्ट भी करते हैं, तो आपको ना तो बुक्स मेंटेन करने की जरूरत है, ना ऑडिट करने की जरूरत है। आप एलिजिबल हैं बट डू नॉट ऑप्ट फॉर इट, मतलब आप उससे कुछ कम दिखाना चाहते हैं, तो आपको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी और ऑडिट भी कराना पड़ेगा, प्रोवाइडेड आपकी इनकम इज मोर देन द थ्रेशोल्ड लिमिट। अगर आपको याद होगा 44 ADA के बारे में उसने लिखा था, ये वाली कंडीशन होगी। देन 44 AE प्रोफेशनल्स नॉट एलिजिबल फॉर 44 ADA। जो AA में हुए थे ना, लीगल, इंजीनियरिंग, मेडिकल वगैरह वाले, और वो जो नोटिफाइड थे, मैं हूँ वो प्रोफेशनल, लेकिन मेरी 50 लाख से ज्यादा की टर्नओवर हो गई, ग्रॉस रिसीट्स हो गई, तो मैं 44 ADA में तो नहीं जा सकती। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे बुक्स मेंटेन करनी होंगी, बिल्कुल करनी होंगी, और मुझे उसका ऑडिट कराना होगा। अगर मेरी ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा हो गई, जो हमने यहाँ पर जाके लिख दिया एलिजिबल फॉर ADA, एक परसीव करी कोई सिचुएशन कि इसके अलावा भी कोई कंडीशन है जिस वजह से हम क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो मैं बहुत दिमाग लगाता हूँ, एक ही कंडीशन है कि आपकी टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा ना हो। तो दैट मेक सेंस कि जैसे ही आपकी 50 से ज्यादा हुई, आप 44 ADA से बाहर चले जाते हो, आपको बुक्स मेंटेन करनी होती है, ऑडिट कराना होता है। दैट इज टू क्लियर। इसके अलावा जो भी प्रोफेशन बच गए, उन सबके ऊपर वही वाला फंडा लगेगा जो अभी हमने सेक्शन में पढ़ा। उसको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी अगर उसकी सेल 20 लाख से ज्यादा है, और इंडिविजुअल और HUF के लिए वो 50 लाख हो जाती है, और इनकम उसकी 1,20,000 से ज्यादा है, और इंडिविजुअल और HUF के लिए वो 2,50,000 हो जाती है। वही कंडीशन यहाँ लग जाएगी। और अगर उसकी ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है, तो उसको ऑडिट भी कराना पड़ेगा। ये हमने उसको समराइज कर दिया। दो इतना इजी नहीं है, आगे बहुत झमेले भी है। ऐसे एक बिजनेस का बना दिया, इसको मेरे ख्याल से मैं छोड़ देती हूँ या पढ़ देती हूँ। अगर आप AD के लिए एलिजिबल हैं और ऑप्ट करते हैं, तो आपको बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, बुक्स को ऑडिट कराने की भी जरूरत नहीं है। आप एलिजिबल हैं पर अवेल नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ 44 AD4, बिकॉज ऑफ वो जो 5 साल का आपको गैप मिलता है, जो एक्ट कहता है कि मैं नहीं दूंगा आपको, आप एलिजिबल हो तब भी नहीं दूंगा, क्योंकि आप एक बार ऑप्ट करके ऑप्ट आउट कर चुके हो। तो इस केस में अगर आपकी इनकम थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तो आपको बुक्स भी मेंटेन करनी है और ऑडिट भी कराना है। थर्ड केस, आप एलिजिबल तो है 44 AD के लिए, बट डज नॉट अवेल, नॉट ड्यू टू 44 AD4। आपका वो वाला पीरियड नहीं चल रहा 44 AD4 वाला। इसका एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि जैसे मेरा सेकेंड ईयर है, फर्स्ट ईयर में मैंने 44 AD ऑप्ट नहीं करा था किसी भी वजह से, तो मैंने तो कभी ऑप्ट ही नहीं किया, नेवर। जब मैंने ऑप्ट ही नहीं किया, तो मेरे ऊपर ये वाले सेक्शंस, तो ये प्रोविजंस लग ही नहीं सकते। मैं तो एक सिंपल बिजनेसमैन हूँ, तो ऑप्ट आउट वाली सिचुएशन ही नहीं है, तो फिर इसमें नॉर्मल आपके वो जो प्रोविजंस है वो लग जाएंगे। अगर इनकम थ्रेशोल्ड से ज्यादा है या ग्रॉस टर्नओवर ज्यादा है, तो आप बुक्स भी मेंटेन कीजिए, और अगर 2 करोड़ से ज्यादा की आपकी टर्नओवर है, तो आप उसको ऑडिट भी कराइए। नेक्स्ट मैम, इसमें मुझे लगता है कि यहाँ पे टर्नओवर 1 करोड़ आनी चाहिए, क्योंकि जब हमने 44 AD हम ऑप्ट ही नहीं करे शुरू यस 44 से, ये शायद तो फिर नॉर्मल यस यू आर राइट,
इसमें तो 44AD आया ही नहीं ना कहीं हाँ, सीन में। तो इसलिए यहाँ पे प्रोवाइजो, एक प्रोवाइजो है आगे आएगा जो कहता है कि 44AD वाले केसेस में ऑडिट के लिए 2 करोड़ की लिमिट है, लेकिन वो तो सिर्फ 44AD वालों को to make them synchronized with these sections है. I'm sorry यहाँ गलत लिखा गया. Eligible for 44AE and opts for the same. फिर आप 44AE में हो, गुड्स कैरेज वाले में हो, ऑप्ट भी करते हो तो ना आपको बुक्स मेंटेन करनी है ना आपको बुक्स ऑडिट कराना है. आप एलिजिबल हो बट ऑप्ट नहीं करते हो तो डेफिनेटली आप उससे कम दिखाओगे, इसकी बात हम कर चुके हैं. आपको बुक्स भी मेंटेन करनी है, आपको ऑडिट भी कराना है. बाकी जितने भी बिजनेसेस बचते हैं इनके अलावा 44AD वाले हुए जो एलिजिबल ही नहीं है या व्हाटएवर, जो भी कुछ बचता है उनके ऊपर नॉर्मल वाले प्रोविजन लगेंगे. अगर इनकम 1,20 से और 2,50 से ज्यादा है या ग्रॉस टर्नओवर 10 या 25 लाख से ज्यादा है तो उसको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी. ये फिर 2 करोड़ आ गया ना. अदर ये गलत हो गया, ये 1 करोड़ होना चाहिए. यस मैम, यहाँ दोनों जगह 1 करोड़ है. राइट ना? हाँ, यहाँ भी गलती हो गई. टर्नओवर अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा. ये मैं ठीक करा दूंगी. चलिए, ये बात हो गई ऑडिट की. बुक्स की भी हो गई, ऑडिट की भी हो गई, दोनों की मिलाकर भी हो गई. मुझे ऐसी फील है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कोशिश करते हैं. 44AD पर आ जाते हैं. ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो बात करता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस. जो बिजनेस की बात करता है प्रिजम्पटिव बेसिस पर. और आप सब मानेंगे कि हम लोग सबसे ज्यादा जो गलत हो गया, सबसे ज्यादा रिटर्न्स इसी में बढ़ते हैं 44AD में. और मेरे पास बहुत सारी इसकी क्वेरीज भी आई हुई हैं 44AD. चलिए, ये थोड़ा सा जब ये अमेंडमेंट आई थी, आपको पता होगा इससे पहले तो 44AD सिर्फ सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए होता था और एक 44AF अलग से होता था रिटेल ट्रेडर्स के लिए. तो इन्होंने 2009 के फाइनेंस एक्ट से एक अमेंडमेंट लाए थे जो इन्होंने सबको मिला. ही तब भी था तो उन्होंने सबको खत्म कर आगे इन्होंने कहा सारे बिजनेसेस को ले आते हैं. पहले सारे बिजनेस नहीं होते थे. 44AF में रिटेलर्स आते थे और 44AD में सिविल कंस्ट्रक्शन आते थे, बाकी बिजनेस रह जाते थे. तो ये 2009 फाइनेंस नंबर 2 एक्ट से आया था विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2011-12. लेकिन वो जो प्रिजम्पटिव की बात हो रही थी ना, और वो जो असली सवाल आता है कि कहाँ मुझे बुक्स ऑडिट करानी है, कहाँ नहीं करानी, कहाँ मेंटेन करनी है, कहाँ नहीं, उसका काफी सारा जवाब इस मेमोरेंडम से मिलता है. जो हमने पूरा कॉपी नहीं कराया उसका वो एक्सट्रैक्ट जो थोड़ा सा रेलेवेंट है, क्योंकि लंबा था मेमोरेंडम और काफी चीजें बहुत ही जनरल थी तो वो हमने नहीं डाली. ये एक्सट्रैक्ट है, ये थोड़ा सा मैं पूरा पढ़ना चाहूंगी, इसमें क्लैरिटी आएगी. There has been a substantial increase in small businesses with the growth of transport and communication and general growth of the economy. A large number of businesses and service providers in rural and urban areas who earn substantial interest income are outside the tax net. जैसे मैं पहले कह रही थी, introduction of presumptive tax provisions in respect of small businesses would help a number of small businesses to comply with the taxation provisions without consuming their time and resources. A presumptive income scheme for small taxpayers lowers the compliance cost for such taxpayers and also reduces the administrative burden on the tax machine. ये मैं पहले अपनी भाषा में बोल चुकी हूँ कि भाई जो टैक्स पेयर है उसको कंप्लायंस कम करना पड़े और जो डिपार्टमेंट के बड़े बड़े लोग बैठे हैं उनको छोटे छोटे केसेस में ना लगना पड़े. ये इसके पीछे फंडामेंटल है. In view of the above, it is proposed to expand the scope of presumptive taxation to all businesses by substituting a new section 44AD. The salient features of the proposed presumptive taxation schemes are as under. ये भी हमने सारे नहीं लिखे क्योंकि बेसिकली तो जो सेक्शंस आएंगे वही लिखे हुए थे. अब ये फिर दोबारा आ गया, आई एम सॉरी. An assessee opting for the above scheme shall be exempted from maintenance of books of accounts related to such business as required under section 44AA of the Income Tax Act. ये मैंने इसलिए कॉपी करा है क्योंकि ये सवाल बहुत आता है कि अगर मैं प्रिजम्पटिव में जा रहा हूँ, 44AD में जा रहा हूँ, तो क्या मैं बुक्स मेंटेन करूँ. इन्होंने बहुत क्लियरली मेमोरेंडम में लिख दिया है कि प्रिजम्पटिव का मतलब ही है कि आपको 44AA में जाने की जरूरत नहीं है.
हमने मान लिया आपका 8% प्रॉफिट होगा, है या नहीं है मुझे नहीं पता, कम है तो भी दे दो, ज्यादा है तो भी दे दो, ठीक है। ये इसकी रेलेवेंस बहुत है क्योंकि ये वाला इसमें बहुत कंफ्यूजन है। बहुत सारे फोन्स आए हैं जिसमें लोगों का ये कहना है कि अगर मेरा ज्यादा है प्रॉफिट 8% से और ये कहते हैं 8 पर दे दो, मेरा है ज्यादा तो मैं क्या करूं, बुक्स मेंटेन करूं, किताबें नहीं, क्योंकि आप एलिजिबल हो और आप ऑप्ट कर रहे हो। एंड ऑप्शन में एक चीज जो बहुत मजेदार आप लोग पढ़ेंगे हर एक सेक्शन में, वो जो एक कंप्यूटेशन का एक मैकेनिज्म दिया है ना, 8% या इतने पर ट्रक या जो भी कुछ दिया है पर मंथ, उसके साथ साथ उन्होंने हायर भी लिखा है। मतलब उससे ज्यादा भी अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं, आप इतने ईमानदार हैं कि आपकी 8% नहीं 25% इनकम है तो 25 दिखाओ, कोई नहीं रोकता आपको। आपको बुक्स भी नहीं मेंटेन करनी और बुक्स ऑडिट भी नहीं करानी। ये नेक्स्ट वो कहता है एनएसएससी विद टर्नओवर बिलो 40 लाख, उस टाइम 40 लाख था, अब ये 2 करोड़ हो गया है। हु शोज एन इनकम बिलो द प्रिजम्पटिव रेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर दीज प्रोविजंस विल इन केस हिज टोटल इनकम एक्सीड्स द टैक्सेबल लिमिट is required to maintain books of accounts and also get them audited. इतनी क्लैरिटी है मेमोरेंडम में, इतनी क्लैरिटी है कि अगर उससे कम दिखाना चाहते हो, क्योंकि कम दिखाना चाहते हो, भाई सरकार ने मन बना लिया कि आपके जैसे जो व्यापारी हैं, आपके जैसे व्यापार में हम ये मान के चलते हैं ऑन एन एवरेज 8% की इनकम होती है। तो अगर आपकी 2 पैसे की भी टर्नओवर है तो उसके ऊपर 8% का आप 8% की इनकम मान लो, उसके ऊपर टैक्स दे दो। लेकिन अगर आपका मन है उससे कम देने का तो हमें किताबें दिखा दो ना, फिर किताबें मेंटेन करो, किताबों को ऑडिट कराओ। लेकिन उसमें भी बड़ा अच्छा लिख दिया इन्होंने कि अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा है इनकम तो लॉस वॉस है तो रहने दो। अब अलग अलग सेक्शंस के आएंगे वो पढ़ते हैं। अब ये कुछ केसेस हैं, केस लॉज हैं जिन्होंने इस चीज को एनालाइज किया कि इसके पीछे क्या इंटेंशन है लेजिस्लेचर की। ये मैं ज्यादा नहीं पढ़ना चाहूंगी। ऑन एनालिसिस ऑफ वेरियस जजमेंट्स टू हेल्प द स्मॉल ट्रेडर्स हु हैव डिफिकल्टीज इन मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स, डेफिनेटली ये क्लियर है, ये मैं कई बार बोल चुकी हूँ। दैट द असेसी determining his income under section 44 AD shall not be asked to produce the books of accounts. However, the principal factor deciding the applicability of section 44 AD, that is the turnover, may be asked to be explained. ये तो आपको मानना पड़ेगा कि अगर आप कहते हो कि भाई शायद ब्रॉडबैंड का इशू है, प्लीज बियर विद अस।